کہ آج آپ سب کو آباد ہو، KCCI ہو، تاجر آرگنائزیشن زون، سب کو ایک جگہ یہاں پر یکجا کیا ہے اس شخصیت نے. بہت آپ سب ان سے پیار کرتے ہیں. میری مراد آج کی اس پروکار تقریب کے میزبان خاص آپ کے ہمارے اکرم مصروفیات کے باوجود مجھے اور میری پوری تاجر برادری کو عزت بخشی، اور محسن بھائی کی والدہ کا پچھلے دنوں انتقال ہوا. اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. اس کے باوجود انہوں نے میری دعوت کو قبول کیا، ان کا بہت بہت شکریہ. آج کی تقریب انہی دونوں کے دیے ہوئے تحفوں کی خوشی میں ہے، جن کا نام صدر KCCI طارق یوسف ثناءاللہ والے صاحب ہیں، اور آباد کے نو منتخب چیئرمین الطاف طائی بھائی صاحب. یہ دونوں شخصیات ان عہدوں سے پہلے بھی ہمارے لیے بہت عزیز تھی. زبیر بھائی اور محسن بھائی نے ان کو اور چار چاند لگا دیے. آج پوری تاجر برادری، انڈسٹریلسٹ اور بلڈرز کے عہدیداران جو کہ کراچی کے اصل اسٹیک ہولڈر ہیں یہاں موجود ہیں. یہ سب آپ کو مبارکباد دیتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں. آپ سے پہلے جو صدور چیئرمین اور دیگر عہدیداران کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں. وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک ایک کا نام نہیں لوں گا، وقت لگے گا، اس لیے معذرت خواہ ہوں. زبیر بھائی اور محسن بھائی، آج چیمبر آباد اور کراچی کی تمام تاجر تنظیموں کو اکٹھا کرنے کا ایک مقصد تھا. جبکہ ہم جانتے ہیں چیمبر آباد اور کراچی کی تمام تاجر تنظیمیں اپنے اپنے طور پر پروگرام کرتی رہتی ہیں. میں نے سوچا دونوں چیمبر اور چیئرمین آباد کی خوشی میں، صدر چیمبر اور چیئرمین آباد کی خوشی میں ہم سب کی خوشی ہے، کیوں نہ اکٹھی منائی جائے اور ایک نئی ریت ڈالی جائے. اور ایک تاثر جانا چاہیے کہ کراچی کے سب چھوٹے بڑے تاجر ایک پلیٹ فارم پہ ہیں. آج سے پہلے تاجر برادری کو جو بھی مسائل ہوئے ہیں، تاجروں کی تمام تنظیمیں اپنے اپنے طور پر بھرپور ساتھ بھی آتی ہیں، مگر اس کے باوجود سینئر عہدیداران کو پیچھے نہیں پایا. جیسا کہ نسلہ ٹاور کی مثال ہمارے سامنے ہے. محسن بھائی کی قیادت میں نسلہ ٹاور پر احتجاج کے دوران جو ظلم بلڈروں پر ہوئے، آنسو گیس کا بے دریغ استعمال ہوا، لاٹھی چارج ہوا، اور ہمارے سینئر چیئرمین حنیف میمن بھائی کا ہاتھ کا فریکچر ہوا. اس کے باوجود نسلہ ٹاور نہیں بچا. سپریم کورٹ کا آرڈر تھا، لیکن احتجاج نے عیاں کر دیا کہ پورے پاکستان نے کہا کہ ظلم ہوا ہے. یہ بھی سب نے دیکھا کہ اس کے بعد کراچی کی لیگل بلڈنگوں کو توڑ پھوڑ کا سلسلہ تھم گیا. دکانداروں کو رقوم دلوانا اور ان کی دکانیں بنوانا، یہ پاکستان کی تاریخ کا اتنے بڑے نقصان کا ازالہ چیمبر نے کروایا، اور بے شمار معاملات میں کراچی چیمبر اپنا کردار ادا کرتا رہا. مگر حال ہی میں جس تنگدہی سے، جس میں ہم چیئرمین اسمال ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے چیئرمین مجید میمن صاحب نے اپنا بھرپور کردار بخوبی سر انجام دیا، ہم ان کے شکر گزار ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ اپنے نئے صدر KCCI طارق یوسف صاحب اور ان کی پوری ٹیم، چیئرمین آباد الطاف طائی اور ان کی پوری ٹیم، زبیر بھائی،
मोहसिन भाई की सरपरस्ती में हमा वक्त कारोबारी तबके आप चेयरमैन है और कराची ताजिर अलायंस के, आप सबकी भरपूर तालियों में जनाब हकीम शाह साहब। ज़ुबैर मोतीवाला साहब और आबाद के नौमुंतखब चेयरमैन अल्ताफ़ ताई साहब, KCCI के नौमुंतखब सदर तारिक यूसुफ साहब, दीगर हमारे यहाँ मौजूद मुअज़्ज़िज़ ताजिर बरादरी को अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा राना अकरम साहब का कि बड़ी मोहब्बत से हमेशा बुलाते हैं, और आज जो उन्होंने ये गुलदस्ता सजाया है ये देख के बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। हम तो हमेशा कहते हैं कि यही इत्तेहाद, यही इत्तिफाक उस वक्त अगर नज़र आए कि जब इस कराची शहर में खुसूसन ताजिर बरादरी पे जुल्म हो रहा होता है या उनको जो मसाइल दरपेश हो रहे होते हैं, उनके लिए अगर हम इस तरह इकट्ठे हों तो मैं समझता हूँ। इत्तेहाद के जनाब जमील अहमद पराचा साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो भी यहाँ पर आए डाइस पर और मुख्तसरन इज़हार ख्याल यहाँ पर करें इस तकरीब के हवाले से। ज़ुबैर मोतीवाला साहब की मौजूदगी का भरपूर फ़ायदा उठाएँ, लेकिन तमाम मुकर्रर जो हैं वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची चैम्बर के ज़ुबैर मोतीवाला साहब आज ये मौजूद हैं। आबाद के फोटोग्राफर या इसको पीछे वो आगे लगा लेना अपना कैमरा, वो आगे लगा ले। आज ताजिर बिरादरी कसीर तादाद में यहाँ मौजूद है और ये सारा गुलदस्ता वो काम हम सबको मिलकर कर देना चाहिए। और ज़ुबैर भाई ने अभी जो अभी मसला था 6,000 रुपये का बिलों में, ज़ुबैर मोतीवाला भाई ने हमें बुलाया, सबको वहाँ पे इकट्ठा किया और वीडियो कॉल पे वज़ीर ख़जाना को भी किया। तमाम मामला वहाँ हल करने की कोशिश की गई और हुए भी मामला हल। तो इसी तरह अगर तमाम लोग ताजिर, चाहे वो छोटा ताजिर हो, बड़ा ताजिर हो, कोई भी हो, एक प्लेटफार्म पे जमा हो के कोई भी मसाइल हल करे तो इंशाअल्लाह मैं नहीं समझता कि कोई भी मसला रह जाएगा। और जो ज़ुबैर भाई मौजूद हैं, मैं और आबाद के सदर भी मौजूद हैं, यहाँ KCCI के सदर भी मौजूद हैं। सबसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग इस वक्त जो लोगों पे एक तलवार लटकाई गई है POS की, जो लोग POS में नहीं आ रहे वो ज़बरदस्ती उनको शामिल किया जा रहा है, तो इसके लिए भी कोई मुश्तरका इजलास बुला ले और हम सबको जमा कर लें ताकि हम सब एक आवाज़ होके एक बात करके सब कलीद किरदार अदा रहा। मैं इस वक्त इंतहाई मोहब्बत के साथ ताजिर रहनुमा ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर जनाब हमाद पूनावाला साहब से दरख्वास्त करूँगा कि हमाद पूनावाला साहब यहाँ पर आएँ और इस तकरीब के हवाले से मुबारकबाद भी दें अल्ताफ़ ताई साहब को, तारिक यूसुफ साहब को। अस्सलाम वालेकुम। मैं राना साहब को सबसे पहले मुबारकबाद दूंगा एक ज़बरदस्त इवेंट करने पे, और हमें अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके से माशाल्लाह से इन्होंने एक गैदरिंग रखी होगी और इस गैदरिंग के अंदर इन्होंने तमाम लोगों को भी इन किया और स्पेशली जहाँ से ये बिलोंग करते हैं छोटे ताजिरों से, उनको भी सबको इन्होंने इनवाइट किया और सबको एक जगह पर लेकर आए। चैम्बर के यहाँ लोग मौजूद हैं, नौमुंतखब प्रेसिडेंट मौजूद है तारिक साहब, मैं इनको मुबारकबाद दूंगा। और स्पेशली इदरीस भाई को जो उनका टेन्योर किया है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से छोटे ताजिरों को लेके चले अपने इस टेन्योर में। तो जो छोटे ताजिर बैठे हुए, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इदरीस भाई के लिए स्पेशली तालियां बजाएं कि जिस तरीके से इदरीस भाई लेके चले, जो प्रॉब्लम्स रहे उन्होंने अपना टेन्योर निकाला ताकि आगे आने वाले जो लोग होते हैं वो समझ सकें कि लोग कितना प्यार करते हैं, छोटे ताजिर कितना प्यार करते हैं चैम्बर के लोगों से। और जब हमें प्रॉब्लम्स आते हैं, मजीद भाई तो होते ही हैं, और उनके साथ जब कोई नया आता है तो मजीद भाई भी इंट्रोडक्शन कराते हैं और वो हमारे साथ किस तरीके से चलते हैं। और स्पेशली आबाद के जो एक और ताजिर रहनुमा, बड़े लीडर और ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के आप चेयरमैन हैं
मैं यहाँ पर मधु करना चाहूँगा जनाब SM आलम साहब। मैं यहाँ पर मधु करना चाहूँगा आप अलायंस के चेयरमैन हैं, मुख्तसर इज़हार ख्याल के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाल्लाह इस गुलदस्ते में जितने फूल बैठे हुए हैं, राना साहब ने माशाल्लाह जो गुलदस्ता सजा लिया और माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म की रौनक लगाई है राना साहब ने। इस पर मैं खराज तहसीन पेश करूँगा। और राना साहब ने माशाल्लाह आते आते मुझको जो ना कुछ पाबंदियाँ आयद कर दी हैं, तो लिहाजा अब 2 अल्फाज बोलूँगा इंशाल्लाह। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करूँगा अल्ताफ़ ताई साहब को माशाल्लाह चेयरमैन आबाद बनने पर, और इसी के साथ साथ तारिक साहब को मुबारकबाद पेश करूँगा प्रेसिडेंट ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स बनने पर। इसके साथ साथ मैं जैसे कि अभी माशाल्लाह आलम ने एक बात बोली, और इसी तरह से मैं भी एक बात कहना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम मोअज़्ज़िज़ीन को सलाम पेश करता हूँ, और मेरे हर दिल अज़ीज़ दोस्त, हमारे साथी, देरीना साथी मोहम्मद अकरम राना साहब की इन काविशों को काबिल सताइश समझता हूँ कि आज माशाल्लाह उन्होंने जो गुलदस्ता सजाया है, ये इस बात का सबूत है कि हम एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने का जज्बा रखते हैं। हम समझते हैं कि यकजा होना, मुत्तहिद होना, मुनज़्ज़म होना ये वक्त की आवाज़ है। ये दीगर बात है कि छोटे छोटे मुफादात और गुमराही में हम लोग पड़ जाते हैं और आपस के इत्तेहाद को खो देते हैं। मैं कहता हूँ कि हमें बहुत सारी चीज़ें, कहीं हम दीन के नाम पे, कहीं हम मुल्क के नाम पे हम एक दूसरे को कायल करते हैं। मैं यहाँ मौजूद ये जो कराची की अहम तरीन जो ताजिर बरादरी के नुमाइंदगान हैं, मैं उनसे मुल्तमिस हूँ कि सिर्फ इज़्ज़त दी है, हमें पहचान दिया है। हम चाहें भी तो कराची का एहसान लौटा नहीं सकते, लेकिन अगर हम कराची के लिए कुछ हम कर गुज़रें तो बड़ी बात होगी, कुछ अगर ना करें तो कल वक्त हमसे पूछेगा और हमारा कम से कम ज़मीर हमें बराबर करेगा। बहुत सारे लोग यहाँ जिनकी मैं समझता हूँ कि जिनका बड़ा किरदार है, अल्लाह ने उनको अपने अपने मुख्तलिफ फ़ोरम पे बड़ी इज़्ज़त दी है। मोहसिन शेखानी साहब हैं, अल्लाह ने उनको बड़ा मुकाम, उनके काम की वजह से मुकाम दिया है। इसी तरह ज़ुबैर मोतीवाला साहब हैं, अल्लाह ने उनको भी मुकाम दिया है। वो जिस तरीके से एफ़र्ट्स करते हैं, लेकिन कुछ लोग वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे मजीद मेमन है हमारे दोस्त, के एक बहुत ही कहते हैं कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा। मैंने इनके लिए अक्सर कहता हूँ कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मेमन है तो बेतैग भी लड़ता है सिपाही। तो ये वो मेमन है जिसे मैं मोमिन समझता हूँ कि ये बेबाक बात करता है और इतना ज़्यादा दिल गिरफ्तार हो जाता है कराची के हालात को देखकर कि अक्सर मैं इनसे बात करता हूँ तो इनकी आवाज़ गुलगीर हो जाती है। मजीद भाई अपना मिशन जारी रखें। कराची चैम्बर और छोटे ताजरों के बीच में आपने पुल का किरदार अदा किया है, इस किरदार को जारी और सारी रखें। मैं ख़ुद भी अपने आप को पेश करता हूँ कि जिस लायक भी मुझे समझें, इस शहर की खातिर मैं हाजिर हूँ, लेकिन खुदा के लिए मैं एक मरतबा फिर आप कम से कम जिस कबील में जिस एसोसिएशंस में आप मौजूद हैं उसे मजबूत करें, मरबूत करें, उसके मुस्बत मकासद उसके सामने रखें और इस मुल्क के लिए लड़ जाएं दामे दरमे सुखने कदमे, वरना कल ये मुल्क तो मुल्क खुदा भी आपको माफ़ नहीं करेगा। खुदा करे कि मेरी बात आप लोगों के दिलों में असर कर जाए। बहुत शुक्रिया मीर साहब आपका। और जहां आपने इतनी तारीफ की है और शहर कराची के एक और ताजिर रहनुमा भी मुझे राना साहब ने हिदायत दी है, अभी चूँकि लेट पहुँचे हैं, मुख्तसरन इज़हार ख्याल के लिए शेख हबीब साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ। ताजिर रहनुमा हैं, सीनियर ताजिर रहनुमा हैं जनाब शेख हबीब साहब, और मुबारकबाद भी दे दें मुख्तसरन इज़हार ख्याल जनाब शेख हबीब साहब।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारुफ तो मेरा नादिर साहब ने करा दिया। कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद का मैं चेयरमैन हूँ, इलेक्ट्रॉनिक एंड मोटरसाइकिल डीलर अलायंस का भी चेयरमैन और मरकज़ी तंजीम ताजरान पाकिस्तान का सीनियर वाइस चेयरमैन। मैं ये समझता हूँ कि चैम्बर हाजी कासिम सिराज तेली साहब को कोई भी शख्स मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान में उनको भूल नहीं सकता। वो आज हम में नहीं है लेकिन हमारे दिल के साथ है। और आज वो जो चैम्बर, कराची चैम्बर की जो पहचान है वो हाजी कासिम सिराज तेली साहब की है। दूसरे इसके हवाले से मजीद मेमन साहब स्मॉल चैम्बर के जो ताहयात चेयरमैन, मैं उनको मुबारकबाद दूंगा कि छोटे ताजिरों को वो साथ लेकर और उनकी हर तकलीफ में इस बात का एहसास करते हुए कि ये छोटा ताजिर हमारा नुमाइंदा है और उसे ये अपने पास जगह देते हैं और अपने दिल में जगह देते हैं और उनको बुलाते हैं। प्लस के अलावा चैम्बर की टीम, जो नई टीम इस वक्त क़यादत आई है, इसको मैं तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आबाद के हवाले से भी यही बात कहूँगा कि जो नई टीम आई है उनको भी मुबारकबाद पेश करूँगा कि वो अपना किरदार बहुत अच्छा अदा कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। और इसी तरह चैम्बर चारों पाँचों चल रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराची चैम्बर का एक अपना मकाम है। तो मेरा ख्याल है तमाम मुकर्रिर अच्छी खासी बात कर चुके हैं। मेरा ख्याल है मुझे हाइल होना ज़्यादा बेहतर नहीं होगा, क्योंकि 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का ये शहर है, जिसको हम मिनी पाकिस्तान भी कहते हैं और ये सिंध का दारुल खिलाफा है। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये कि इसी 70% रेवेन्यू देने वाले शहर को जो है फरामोश किया जाता है। ना इसके साथ ऐसा सलूक है कि मैं कहता हूँ सुतेली तो बहुत दूर, मेरी अल्फाज ही नहीं है हमारे पास कि ये वो शहर है जो कि पूरे पाकिस्तान को चला रहा है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इस कराची को कोई ऑन करने के लिए तैयार नहीं है। हर सियासी जमात आती है, दावेदार ज़रूर है। तो मैं चैम्बर से यही कहूँगा कि खुदारा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं, एक ऐसी चीज़ लेकर आएँ कि कराची की बिजनेस कम्युनिटी की जो है आवाज़ को सुना जा सके और 3.5 करोड़ आवाम के जो है मसाइल सॉल्व किए जा सकें। शुक्रिया, थैंक यू। बहुत शुक्रिया शेख साहब। और यकीनी तौर पर बड़ा प्लेटफॉर्म है हम सब के लिए, तो मैं चाहूँगा कि KCCI के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। एक बड़ा प्लेटफॉर्म हम सब के लिए। अच्छा जी, मैं मुख्तसर इज़हार ख्याल के लिए जैसे राना साहब इज़हार ख्याल के लिए सदर आप और कराची ताजिर अलायंस और चेयरमैन अलायंस ऑफ आरामबाग मार्केट से इरफान साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो भी आए और इज़हार ख्याल करें और उनके बाद हम चैम्बर और आबाद की तरफ जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ुबैर भाई, मजीद भाई, KCCI पूरी आबाद की पूरी टीम, मोहसिन शेखानी भाई, सबको मोअज़्ज़िज़ ताजिर बरादरी तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम। देखें, बात हो रही है यकजा होने की, तो मुझे बहुत थोड़ा अर्सा हुआ है कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स में मजीद भाई यहाँ बैठे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें यकजा होने की ज़रूरत नहीं, यकजा हम हैं। मैं समझता हूँ कि तमाम ताजिर बरादरी अगर कोई मसाइल है तो ज़ुबैर भाई कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स मौजूद है, तो सिर्फ आवाज़ यहीं से एक आनी चाहिए। हम सबको इनका साथ देना चाहिए, मिल के एक साथ खड़ा रहना चाहिए। मैं यहाँ माशाल्लाह ताजिर बरादरी को यहाँ जमा किया है, इनको भी मैं दिल की गहराई से मुबारकबाद। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और तमीज़ में इंतहाई मोहब्बत और एहतराम के साथ साबिक़ सदर KCCI जनाब सईद शफीक साहब से कि वो भी यहाँ आए और इज़हार ख्याल करें। जनाब सईद शफीक साहब, तालियां होनी चाहिए आप सबकी। और चूँकि औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा चेयरमैन ज़ुबैर मोतीवाला, आबाद के चेयरमैन मोहसिन शेखानी साहब, मेरा नौमुंतखब सदर तारिक यूसुफ, तमाम दीगर यहाँ ताजिर तंजीमों के रहनुमा, दीगर ताजरान, दिल की गहराइयों के आपको सलाम। मैंने महसूस किया, जो ऑब्ज़र्व किया वो ये था कि सबके दिल की आवाज़ होती वो ये थी कि अब हम बिखरे ना हो, हम सब एक हो जाएं और एक छत के तले आके हम अपने एफ़र्ट्स करें और ये शहर
जो इस वक्त ऐसा लगता है कि जैसे सौतेला सलूक हो रहा है कराची के साथ, शायद हमारे इकट्ठा होने से, हमारे मजबूत होने से, अल्लाह करे ये जो सलूक हमारे साथ रवा रखा जा रहा है इसमें कोई कमी आ जाए। आप यकीन करें, मैं कोई दिल की बात एक दो आपके साथ करूंगा, वक्त मुख्तसर लेना है आपका, ज़्यादा नहीं लेना। मुल्क से बाहर कभी जाने का इत्तेफाक होता है, आप में से बहुत सारे जो है कभी मुल्क से बाहर गए होंगे। उस मुल्क से जाने के बाद जब आप पाकिस्तान वापस आते हैं और उस मुल्क में जब होते हैं, तो मुझे उस मुल्क को देख के और एक कंपैरिजन करके पाकिस्तान के साथ कोई खुद ने तरक्की कर गए, हमारे सामने वो अक़वाम, वो ममालिक जो हमारे बाद आज़ाद हुए या हमारे बाद तरक्की की राह पर गामज़न हुए, आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। 75 साल हो गए, आज भी आप बिजली, पानी, गैस, सेहत, तालीम इससे नहीं निकल पा रहे। मेरी नस्लों को क्या दोगे यार, क्या दोगे? वो कौन सा बाप है जो ये सोचता है कि यार मैं अपनी औलाद को, कोई अगर मोटरसाइकिल पर होता है तो उसकी सोच ये होती है कि मैं अपने बच्चों के लिए गाड़ी का ख्वाब देखूं, कोई किराए के घर में रहता है उसकी ख्वाहिश ये होती है कि मैं अपने बच्चे को अच्छे बंगले में रहने वाला देखूं। आज अगर आप एक नहीं होगे इस ख्वाहिश को, कौन सा ऐसा बाप है जो ये ना सोचे, मुझे बताओ। तो आप ये क्यों नहीं सोचते कि आपने अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को एक अच्छा और बेहतर मुस्तकबिल देना है कि नहीं देना है? अगर दे रहे हैं तो उसके पहले, सबसे पहले ये इब्तिदा मैं अकरम राना दिल की गहराइयों से आपका मशकूर हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज इस फोरम पे सबको इकट्ठा किया। अगर कोई छोटे मोटे इख्तलाफात थे भी तो उनको आज इस प्रोग्राम के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए, सबको एक हो जाना चाहिए, एक छत के तले आके खड़ा हो जाना चाहिए। और इस शहर से आवाज़ आए तो मुख्तलिफ ताजर तंजीमों की अगर आए तो उसका फोरम एक ही, और वो आवाज़ बावाज़ बुलंद। कभी मैच हो रहा हो, आप नेशनल स्टेडियम के बाहर से गुजरे, अगर आप अकेले इंडिविजुअल कैपेसिटी में नेशनल स्टेडियम में खड़े हो के आप चौका लगे, कोई आप चीख रहे हो, चिल्ला रहे हो, आपकी आवाज़ 10 फीट से आगे नहीं जाएगी। और जब मजमा भरा हो उसको, आगा खान के गेट के ऊपर हो, और जब एक चौका या छक्का लगेगा तो एक क्राउड की जो आवाज़ आती है आपको वहाँ तक आएगी। तो इक़्तिदार के ऐवानों को हिला देने वाली आवाज़ पैदा करना है अगर, और अपने टारगेट्स को अचीव करना है, अपनी नस्लों को बेहतर मुस्तक़बिल देना है, तो खुदारा ये आलम ने, दूसरे दोस्तों ने आगे जो बात की, सब इसी पे बात की, मगर आज ये फैसला आप ये करके उठे इंशाअल्लाह ताला, और मुझे यकीन है कि मेरी बात आपके दिल तक पहुँचेगी। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया। शहर कराची की एक और मारूफ शख्सियत, बिजनेस कम्युनिटी तरीन नाम, आप सबकी भरपूर तालियों में जनाब हनीफ गौहर साहब, साबिक चेयरमैन आबाद। जनाब हनीफ गौहर साहब, तालियां आपकी होनी चाहिए। और गौहर साहब हो जाएगी भाई तकरीरों में, तो बोल रहा हूँ आने के बाद कर लेते। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम लीडरान जो स्टेज पे तशरीफ़ रखते हैं, और जितने मेरे दोस्त अहबाब सामने तशरीफ़ रखते हैं, मेरे आबाद के चेयरमैन और तमाम दोस्त अहबाब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं राना साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारी उम्मीद से ज़्यादा बड़ा इज्तिमा उन्होंने आज इकट्ठा किया। तो यकीनन हम अपने अपने तौर पर, चाहे वो आबाद हो, चाहे वो कराची चैम्बर हो, या हमारी ज़ैली कोई भी तंजीम हो या कोई भी एसोसिएशन हो, अपने अपने तौर पर यकीनन सबके सब बिजनेसमैन को इकट्ठा करते हैं। लेकिन आज इस पंडाल में एक छत के नीचे तमाम की तमाम तंजीमों को इकट्ठा करने के लिए मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज के इस फंक्शन के तनासिब से, क्योंकि आज इस पंडाल में मुझे तमाम वो नडर शख्सियात नज़र आ रही हैं, जुबैर मोती की सूरत में और इनकी पूरी टीम की सूरत में, इन सब के सब में सिराज तेली छलक रहे हैं, क्योंकि सभी से बड़ी जगह पर जाकर सिराज तेली ने हमेशा हक की बात की। और मैं ये समझता हूँ कि वो तमाम की तमाम चीज़ें, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे उन तमाम दोस्तों में, नडर दोस्तों में, जितने कराची चैम्बर से जिनका ताल्लुक है, वो मेरे बहुत सारे साबका चेयरमैन यहाँ बैठे हैं, हम सब मोहसिन शेखानी की वजह से चेयरमैन बने। लेकिन आज हमें कोई ऐसा रेजोल्यूशन पास करके यहाँ से उठना चाहिए, क्योंकि इतने ज़्यादा ज्यादती हो रही है, जो कराची के बिजनेसमैन के साथ ज्यादती हो रही है। यकीनन मैं ये समझता हूँ कि वो सिर्फ एक चैम्बर सारी लड़ाई नहीं लड़ सकती, एक आबाद एसोसिएशन सारी लड़ाई नहीं लड़ सकती,
ہم سب کو اکٹھا ہونا پڑے گا. کیوں کہ اس شہر کے اندر آپ تمام کی کسی نہ کسی حوالے سے زمینیں موجود ہیں, کاروبار موجود ہیں, فیکٹریاں موجود ہیں, لیکن ہم سب کراچی والے ہیں, ہم اسی شہر کی پیداوار ہیں, اسی شہر میں پیدا ہوئے ہیں, لیکن ہم نے پیدائش سے لے کر آج تک وہ ظلم نہیں دیکھا جو اس وقت کراچی کے شہر کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے. ہمیں مل کر یہ آواز اٹھانی پڑے گی. ہمیں مشترکہ طور پر اپنے آپ میں سے کوئی ایسا لیڈر چننا پڑے گا جو نڈر ہو, جو آواز اٹھا سکے, اور ہم سب اس کی آواز بن کر چلیں. جب یہ سسٹم کے لوگ آ کر کسی کی زمین پر قبضہ کریں, تمام بزنس مین یکجا ہو کر وہاں چلے جائیں. جب کسی کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں رانا صاحب اور ان کے بیٹے کو بہت مبارکباد دوں گا کہ جنہوں نے آباد کے نومنتخب اور یہ چیمبر کے پریسیڈنٹ جو کہ نئے آئے ہیں, زبیر مودی والا صاحب, ہمارے محسن شیخانی صاحب, اور جتنے بھی میرے ساتھ چیئرمین سارے بیٹھے ہوئے ہیں, آباد کے فارمر چیئرمین اور کرنٹ چیئرمین جو میرے ساتھ وائس چیئرمین سارے ہیں, ان کی طرف سے بہت مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے بہت ہی اچھی محفل سجائی ہے اور بہت ہی یونٹی کا مظاہرہ کیا ہے, جہاں پہ کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری ایک بہت بڑا ادارہ ہے کراچی کا, اور جو تاجر اتحاد کے سارے لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں, اور باقی آباد کے لوگ جو سارے یہاں پہ ہیں, ان کی طرف سے میں بہت مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے ہمیں بلایا یہاں پہ اور یہ موقع دیا کہ ہم آ کے اپنے خیالات کا اظہار کریں. میں سب سے پہلے تو آباد کے بارے میں کچھ کہوں گا کہ دیکھیں یہ آباد جو ہے نا, یہ ایسوسیشن آف بلڈرز اور ڈیولپرز ہے. یہ ایسوسیشن آف بلڈرز ڈیولپرز ہے. اس کے اندر سارے لیگل بلڈرز ہیں جو کہ ٹیکس پیئر ہیں, لیگل کام کرتے ہیں, لیگل پرمیشن لیتے ہیں, اور الحمدللہ اس ملک کے اندر الحمدللہ 1/3 آف دا GDP کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور اس ملک کی معیشت کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں. اسی طرح چیمبر جس کے ساتھ 52,000 ممبرز ہیں الحمدللہ, جو کیونکہ میں نے چیمبر میں بھی 2 سال تک MC میں اپنی خدمت پیش کی ہے, تو وہ بھی ماشاءاللہ ایک بڑا ادارہ ہے, اور تاجر برادری جتنی بھی ہے الحمدللہ وہ بھی ایک بڑی تنظیم ہے. اور آج ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آباد کے حساب سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ پوری کوشش کریں گے, جیسے میری قیادت نے میرے پہ یہ کانفیڈنس کے ساتھ جو مجھے سیٹ دی ہے, تو میں پوری کوشش کروں گا میری ٹیم کے ساتھ, میرے فارورڈ چیئرمین کے ساتھ, میرے چیئرمین محسن شیخانی کے ساتھ مل کے انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کریں گے کہ ہم جتنے جینین مسئلے ہوں ہمارے بلڈرز کے اور ڈیولپرز کے وہ ہم حل کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے ساتھ جو اتنی بڑی تنظیم بیٹھی ہوئی, ہر چیز ہمارے پاس میسر ہے, ہمارے پاس ایگریکلچر ہے, ہمارے پاس انڈسٹریز ہیں الحمدللہ, ہمارے پاس تمام وسائل ہیں, اور الحمدللہ جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے یہاں پہ ہم بلین روپیز ٹیکس بھرتے ہیں. جیسے بھی میرے بھائی نے کہا, علی بوہر صاحب نے کہا کہ ہم یہاں پہ نڈر ہو کے کام کرتے ہیں اور ہم سب چیزیں فیس کرتے ہیں, فیس کرنے کے بعد بھی الحمدللہ ہم ڈیلیور کرتے ہیں, اور الحمدللہ اللہ کے شکر سے مولا کریم کی مہربانی سے ہم ڈیلیور کرتے رہیں گے. کیوں کہ اس ملک نے ہم کو سب کچھ دیا ہے. اگر آج ہم کھڑے ہوئے یہاں پہ اتنے فارمل لیڈرز کھڑے ہوئے, اتنے بڑے بڑے ماشاءاللہ لیڈران کھڑے ہوئے, تو ماشاءاللہ اتنے بڑے لوگ ہیں, تو یہ اس ملک نے ہی دیا, یہ اس ملک کی ہی پیداوار ہے. تو میں کہوں گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کے اور کام کریں. بہت شکریہ, تھینک یو جی. ٹھیک ہے, یہ ایک الطاف طاہر صاحب اور دوسری شخصیت جو ہیں نو منتخب صدر کے CCI آپ سب کی بھرپور تعلیم جناب طارق یوسف صاحب. اور دوسری شخصیت جو ہیں نو منتخب صدر کے CCI آپ سب کی بھرپور تعلیم جناب طارق یوسف صاحب. اور دوسری شخصیت جو ہیں نو منتخب صدر کے CCI آپ سب کی بھرپور تعلیم جناب طارق یوسف صاحب. محمد اللہ رسول کریم. اما بعد, جناب زبیر مودی والا صاحب, جناب اکرم رانا صاحب, محسن شیخانی صاحب, الطاف طاہر صاحب, عتیق میر صاحب, جاوید صاحب, ادریس صاحب, جمیل کراچا صاحب, جناب پونا والا صاحب, جناب مجید میمن صاحب, جناب احسن عامر صاحب اور دیگر مختلف انجمنوں کے صدور, آپ سب کو میں سلام عرض کرتا ہوں اور اس بات کی مبارکباد دیتا ہوں کہ آج اکرم صاحب نے انجمنوں کو اکٹھا کیا. انجمن جو ہے وہ ایک بیسک ضرورت ہے انسان کی.
चाहे वो मोहल्ला कमेटी की शक्ल में हो या मकानात की अंजुमन हो या डिफेंस की अंजुमन हो या ताजरों की अंजुमन हो, कपड़ा मार्केट की हो, और हर मार्केट की अलग अलग भी अंजुमनें हैं। ये अच्छी बात है कि लोग आपस में किसी एक को अपना आगे बढ़ा के बड़ा बना के उससे कहते हैं कि भाई आप ये बात लेके नेक्स्ट स्टेज पर जाएं। यहाँ पर माशाल्लाह इतनी सारे लोग आए हैं, इतनी सारी अंजुमनें हैं। मैं आप लोगों को ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि एक इम्प्रेशन ये ना लीजिएगा हरगिज़ कि चेंबर आपसे अलग है। चेंबर आप ही की वजह से है, चेंबर आप ही के लिए बनी है। चेंबर का काम जो है अपने मेंबरों, हजरत कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज़, हजरत प्लीज़, हमारा काम है लोगों के काम करना, लोगों की खिदमत करना, यही हमारा मोटिव है। इसमें कोई बड़े छोटे वाली बात हरगिज़ नहीं है। हम चाहते हैं कि जो आदमी चेंबर की सीढ़ी चढ़े उसका मसला हल हो जाए, और चेंबर की सीढ़ी चढ़ने के लिए आप तमाम हजरात का ताउन चाहिए। आप लोग अपने इलाके की जो भी है, जैसे अभी एक नाम लिया गया कि आराम बाग की एक एसोसिएशन है, तो हम बिल्कुल यही चाहेंगे कि हर इलाके के लोग जो हैं जो भी परेशानी महसूस करें, चाहे वो सड़कों की हो, चाहे वो इनकम टैक्स की हो, चाहे वो किसी किस्म की लॉ एंड ऑर्डर की हो, चेंबर के अंदर हर प्लेटफॉर्म पर रिप्रेजेंटेशन है। हमने कमेटियां बनाई हुई हैं जो लोगों का काम कर, हर इलाके हर सब्जेक्ट के ऊपर जो है उनकी पूरी कमांड है। कस्टम्स के मामला, शिपिंग के मामला, बिल्कुल आप मुतमईन रहें। मोहसिन शेखानी रहीम। सबसे पहले तो माशाल्लाह हमारे सारे दोस्त ख़वातीन भी एक आध हैं हमारे पास, हजरात हमारे आबाद के मेंबर, चैम्बर के दोस्त, हमारे फेडरेशन, हमारे स्मॉल ट्रेडर्स, सारे दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मीडिया के ख़ास दोस्त, माफ़ करना इसलिए कि उसके बगैर तो सब चीज़ें अधूरी है। मैं राना साहब का शुक्रिया अदा करूँगा। राना भाई बहुत शुक्रिया आपका, माशाल्लाह आपने एक उम्दा फंक्शन जिसमें सारे ही लोगों को इकट्ठा किया। मैं कहता हूँ कि ये एक आपका ऐसा कारनामा है जो मेरे ख्याल से शायद आगे अगर ये चल पड़ा, ज़ुबैर भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, मैं आपको पहले बुलाना था, ज़ुबैर भाई की परमिशन हो तो, इसलिए कि ये सारी जो तकरीरें हो रही थी उसका लुब्बे लबाब ये था कि हम सब एक हो जाएं बेहतर तरीके से, इसमें कोई भी शक नहीं, ठीक है। स्ट्रेंथ होती है, उसी से पावर होता है। मुश्किल ये है कि हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हम सब के अपनी अपनी छोटी छोटी मस्जिदें हैं, कुछ के बड़ी मस्जिदें हैं, लेकिन अपने अपने उसी में हम लगे हुए हैं। अगर हम सब एक होंगे तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ये जो ताकत है, कभी हमने बिज़नेस कम्युनिटी की अपनी ताकत को ताकत ही नहीं समझा। मैं समझता हूँ जो पूरे मुल्क का टैक्स दे रहे हैं, पूरे इंपोर्ट से ड्यूटी दे रहे हैं, पूरे एक्सपोर्ट पे पूरी पाकिस्तान को चला रहे हैं, और पॉलिसीज़ पे मेरा ख्याल है कि हमें कहीं भी देख के अफसोस होता है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता जो इस मुल्क में हो रहा है। इतने बुरे हाल मैंने कभी नहीं देखे जो आज पाकिस्तान के हैं। अनसर्टेनिटी पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, और मतलब मेरे तो वाकई हमें तो रोने का मुकाम है जिस कंडीशन में हम खड़े हैं। मैं ज़ुबैर भाई को ज़रूर मैं कहूँगा कि बहुत इम्पॉर्टेंट है ज़ुबैर भाई, इस वक्त जितने भी हमारी एसोसिएशन है कराची की, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो साथ खड़ी रहती है और एक प्लेटफॉर्म पे होती है, और हमारे पास वक्त होता है, हमारे पास हर चीज़ का वक्त होता है, शायद इन चीज़ों का वक्त नहीं होता। लीडरशिप हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, कोई भी हो, और उसको एक माने और सब पीछे चले। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के मसाइल कोई मसाइल नहीं है। शहर में जो इशू बड़ा देखा, एक नए गवर्नर साहब आ रहे हैं, तो मैंने कहा वाह कमाल है। हम सब बैठे हुए हैं आराम से, सब देख रहे हैं, बोल भी नहीं सकते, सबके स्टेक है मेरे ख्याल से। बिलवानी ने, जावेद बिलवानी ने जब कहा था, मैंने वीडियो देखी थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था। मुझे लगा कि हाँ यार बोलना चाहिए, और बोलेंगे नहीं तो कल शायद आपके अपने बच्चे भी आपको जवाब नहीं दे सकेंगे, उनको भी हम जवाब नहीं दे सकेंगे, आने वाली नस्लों को भी नहीं दे सकेंगे। इट्स इम्पॉर्टेंट
70 साल नहीं हुए मेरे ख्याल से पाकिस्तान के जो 70s के बाद से बुराई शुरू हुई है वो बुराई है। इससे पहले पाकिस्तान इकोनॉमिकल बहुत आगे था, बहुत अच्छी पॉलिसीज़ थी, नेशनलाइजेशन हुई है एजुकेशन की, इंडस्ट्रीज़ की, हेल्थ की, वो बुरे दिन थे। उसके बाद तबाही आई है, उसके बाद ये मुल्क उस दिन से मैं समझता हूँ आज तक हम नेगेटिव गए हैं, पीछे की तरफ गए हैं। इससे पहले कोई इमदाद भी देता था ये मुल्क। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अकरम राना साहब का बड़ा मशकूर ममनून हूँ कि उन्होंने आज ये बेहतरीन किस्म की महफ़िल, और बड़ा इसमें कंपोजिशन में देख रहा हूँ कि पूरे कराची के लोग और कराची के ताजिर तंजीमें सारी की सारी यहाँ जो है ना नुमायाँ नज़र आती हैं। और मैं नाम लेने के लिए सबसे पहले कहूँगा मोहसिन शेखानी साहब यहाँ बैठे हैं, और नव मुंतखब अल्ताफ़ ताई साहब हैं जो हमारी MC के मेंबर थे, माशाल्लाह आज यहाँ बैठे हैं। मजीद मेमन साहब हैं जो इन सारों लोगों को जानते हैं, और जो है ये इन्हीं के जो है किसको देना है किसको बुलाना है सब उनको पता है, ये सारे इनके साथी हैं। तो मजीद मेमन साहब हैं, तारिक यूसुफ साहब बैठे हैं, जावेद बिलवानी साहब हैं, हमारे इदरीस मेमन साहब हैं, बाकी जितने हमारी MC के मेंबरान हैं चेंबर के और सारी ताजिर तंजीमों के। अगर मैं, क्योंकि अभी वक्त बहुत हो चला है, रात हो गई है, सबको भूख भी लगी है, मैं देख रहा हूँ सारे सलाद जो अपने पास रख के गए थे खाने के साथ खाने के लिए वो सारा उन्होंने अभी खा लिया है। तो ये मतलब इससे मैं चाहिए कि मुझे थोड़ा सा इसको कम वक्त में इसको निपटाएं हम। लेकिन एक बात आप देखिए, जितने लोगों ने यहाँ तकरीर की सब ने क्या अपील की, मैं उसके ऊपर शुरू करना चाहता हूँ। उन्होंने सारों ने अपील की हमको एक हो जाना चाहिए। इसका दूसरा मतलब क्या होता है कि आज हम एक नहीं हैं, ठीक है। अब ये अगर ये पहले हम ये तस्लीम कर लें कि आज हम एक नहीं हैं और अपनी सबकी एक अलग अलग मस्जिद है हमारी 1.5 इंच की, तो हमको पहले तो उसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं और कैसे करेंगे उसके ऊपर। और हमने अगर क्या एक होना है या सिर्फ यहाँ रोस्टम में आके बातें करनी है फिर घर चले जाना है। लेकिन मैंने ये देखा कि जितने छोटे ताजरान हैं, जब मसले मसाइल आए और कराची चेंबर में मैंने इनको बुलाया तो सारे लोग आए। कोई कहता था मैं ये वाला हूँ, कोई कहता था मैं ये वाला हूँ, थोड़ा सा ये होता था कि मुझे आपने बोलने का चांस नहीं दिया, ये फलां को नहीं दिया। लेकिन जब वो काम होते गए और जब सारा एक साल गुजरा तो आज आप देखें चेंबर के ऊपर सारे लोगों का एतमाद मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा जो है ना वो बड़ा है। आप देखें अभी कोऑपरेटिव मार्केट की जो आग लगी, विक्टोरिया मार्केट की आग लगी, हम खड़े हो गए कि भाई कैसे नहीं होगा। हमने वो पैसे दिलाए और जो है ना उनको सारे लोगों को जितना उनका क्लेम था पूरे का पूरा उनको भुगता है। 10 साल पहले हमने बोल्टन मार्केट में यही काम किया। तो कराची चेंबर ऐसा नहीं है कि सिर्फ सरकारी काम और जो है ना ये सारे टैक्सेस के काम करते हैं, हम सोशली भी जो हम समझते हैं कि हम जो है ना जिम्मेदार हैं इस कराची शहर के, कि कराची शहर के अंदर जो मसाइल हैं जो प्रॉब्लम्स हैं उनको करना चाहिए। हमें कराची शहर की अहमियत का अंदाज़ा ही नहीं है। अगर आप कराची चेंबर के सेंसस को देखते हैं तो बताते हैं कि 2.25 करोड़ है। मुझे बताओ तो सही ना कि 2.25 करोड़ रुपए अगर किया तो कितने लोगों ने आवाज़ उठाई। एक जावेद बिलवानी ने कहा वहाँ किसी फंक्शन में कि भाई ये कैसा सेंसस हुआ है, बाकी किसने आवाज़ उठाई? आप लोग इतने लोग हैं, अगर हमारा सेंसस ठीक नहीं है, अगर हम 3.5 करोड़ लोग हैं और हम 2.25 करोड़ के ऊपर हम चुपचाप बैठे हैं, कोई आवाज़ नहीं उठती है, इसका क्या मतलब है? हम जहाँ आवाज़ उठानी होती है हम उठा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सबको एक आवाज़ उठा के उठाना पड़ेगा। आप ये मुझे बताएं कि 54% हमारा एक्सपोर्ट पाकिस्तान कराची से होता है, 68% जो मुल्क के ख़जाने में पैसे जाते हैं वो कराची से जाता है। हमको कराची को क्या दिया उन्होंने? अगर जपनी चाहिए कि सारी पार्टियां बैठकर चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन करें, ताकि अगर कुछ भी हो जाए मुल्क के अंदर, इनके सियासी इख्तलाफात कुछ भी हों, हमारी पॉलिसियों में चेंज ना आए। हमें यकीन हो कि जो ना डॉलर रुपी पैरिटी के अंदर इतना फ़र्क नहीं आएगा। हमें यकीन हो कि जो मैंने जिस पॉलिसी के तहत इन्वेस्टमेंट की है वो बदलेगी नहीं। मुझे यकीन हो कि मैं बिल्डिंग बना रहा हूँ, उसका जो मैंने नक्शा पास करवाया, कल इसकी जो है ना फिर जो है ना एक और बंदा नहीं आ जाएगा कि अब इसमें सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। अब ये जब तक हमें यकीन जब होगा जब चार्टर ऑफ इकोनॉमी हो। मुझे एक किताब में पढ़ रहा था मैं, इटली के अंदर 1988 में 11 हुकूमतें एक साल में बदली। वो जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से 11 हुकूमतें बदली, एक भी पॉलिसी के अंदर वहाँ चेंज नहीं आया, ना कोई कारोबार में फ़र्क आया। हम उस स्टेज पर कब पहुँचेंगे? और अगर कराची इसके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा तो आप समझ लें कोई और नहीं उठाएगा। ये हमने करना है। अगर हम ये आज आ गए, मैं आपको कराची चेंबर की तरफ से यकीन दिलाता हूँ कि हम वक्त तैयार हैं। आपके मामला होते तो भी हम लेके जाते हैं, इंडस्ट्री के भी होते तो भी लेके जाते हैं। हम अभी देखें ना जो एक्सपोर्टर्स के मामले थे, माशाल्लाह जो है ना वहाँ थे का प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होना चाहिए। इसलिए क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आपका और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट वो अमेरिका की तरह पॉपुलर वोट से इलेक्ट हो।
یعنی دنیا پاکستان کے ہر حصے سے لوگ اس پریزیڈنٹ کو الیکٹ کرنے کے لیے ووٹ دیں, اس کا پارٹیسپیشن ہو. آج جو ہے نا جب پارلیمنٹ کو آپ ووٹ دیتے ہیں وہاں یہ جو کیا کہتے ہیں سودے بازی ہوتی ہے, فلانا ہوتا ہے, ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے, اور جو ہے وہ ادھر اس کے آدمی توڑ لیتا ہے, وہ اس کے آدمی توڑ لیتا ہے, اور ساری پالیسیاں ادھر ادھر, عوام گئی کھڈے میں, کوئی پرابلم نہیں. لیکن پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہوگا تو اس کے اندر یہ چیزیں نہیں ہوں گی. میں نے پریزیڈنٹ کو الیکٹ کیا ہوگا, میں نے ووٹ دیا ہوگا اس کو کہ یہ پریزیڈنٹ میرا ہے پاکستان کا, تو میں اس کو وہ جواب دہ ہوگا, اس کو 5 سال ملیں گے کام کرنے کے لیے, اور وہ جب وہ کام ہوگا تو ہمارا جو ہے نا کام جس طرح سے نکلنا چاہیے جیسے ہم دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان بڑھے گا. آخر میں ایک بات آپ سے ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی باتیں کریں, ہم باہر جاتے ہیں, اندر جاتے ہیں, کہاں جاتے ہیں, یہاں جاتے ہیں, ہمارا گھر پاکستان ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پاکستان نہیں ہے تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں. یہ آپ 100% آپ بات سمجھ لیں, پاکستان ہی کی وجہ سے ہمارا سب کچھ ہے. تو میں گزارش میری یہ ہے کہ جہاں پاکستان کی بات ہو تو آپ وہاں نڈر بن کر کھڑے ہو جائیں کہ پاکستان کی سلامتی, پاکستان کی بقا, پاکستان کی عزت, پاکستان کی آبرو, اس کے خلاف اگر کوئی بات کرے گا تو ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے. ہم اس کے خلاف بات کریں گے, ہم اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے, اور ملک کی سالمیت کے لیے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ دینے کے لیے صرف زبانی نہیں, دل و جان سے ہم کو تیار ہونا چاہیے. ملک میں اس وقت جو وقت ہے, مجھے کوئی کہتا ہے آج کیا کرنا چاہیے, میں نے کہا جس طرح سے پاکستان کا وقت ہے سب کو استغفار پڑھنا چاہیے اور پاکستان کے حق میں دعا کرنی چاہیے. یہ وہ وقت ہے کہ پاکستان کے لیے دعاؤں کی سخت ضرورت ہے کہ ہم پاکستان کے لیے ہم دعا ہم جو ہے نا یہ کرنے چاہیے. ایک دفعہ پھر میں رانا صاحب آپ کا شکر گزار ہوں, تمام لوگوں کا جو یہاں آئے اور مجھے اتنی دیر برداشت کیا سننے میں, اس کے بھی میں شکر گزار ہوں. اور میں بہت سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح کی تقاریب جو ہیں وہ ہونی چاہیے, اور مختلف مکتبہ فکر کے لوگ جمع ہونے چاہیے, اور ایک دوسرے کی باتوں کو سننا چاہیے تحمل کے ساتھ, برداشت کے ساتھ, اور اس کا کوئی نہ کوئی طریقہ کار نکالنا چاہیے کہ پاکستان کو کیسے آگے بڑھانا ہے, ہمارے بچوں کی آگے آنے والی نسلوں کو کیسے ہم نے جو ہے نا اس کو سنوارنا ہے, اس کی قسمتوں کو کیسے سنوارنا ہے, پاکستان کے جتنے مفادات ہیں ان کو کیسے تحفظ کرنا ہے, اور جو ہمارے جو مسائل ہیں ان کا حل ہم نے کیسے کرنا ہے. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جو دنیا میں بہت کم ممالک ہیں. پاکستان میں 4 موسم ہیں, پاکستان میں پہاڑ ہیں, پاکستان میں سمندر ہیں, پاکستان میں نہریں ہیں, پاکستان میں سمندر. آپ کوئی ایسا پھل بتائیں جو پاکستان میں نہ ہوتا. آپ اس قدر زرخیز ملک, اور آپ آج بھی آپ لینڈ ریفارمز کرنے میں فیل ہو گئے. آج بھی 54 ملین ہیکٹرز آف فرٹائل لینڈ اسٹینڈس انکلٹیویٹڈ. اگر ہم اس کو ہم کلٹیویشن کریں تو آپ کو میں یقین دلاتا ہوں. جی, آج کی تقریب کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم. آج جو تقریب کی ہے ماشاءاللہ رانا صاحب نے, تو ایک عمدہ تقریب تھی, اور ایک پلیٹ فارم پہ آج اتنے سارے یعنی کہ آباد, بلڈرز, اسمال ٹریڈرز, بگ ٹریڈرز سارے ایک پلیٹ فارم پہ تھے, چیمبر. تو ایک اچھی تقریب بھی رہی اور ایک ایکا بھی مل گیا لوگوں کا. اور ایسے ایونٹس ہونے چاہیے تاکہ لوگ ایک جیسی یکجہتی کا مظاہرہ کر سکیں, اور تاکہ یہ اداروں کے پاس بھی اچھے میسج جائیں کہ کراچی والے ایک ہو گئے, اب آپ لوگوں نے کچھ ایسے کام نہیں کرنے کہ کراچی والے آپ تک آ جائیں. تو جو ہمارے اوپر ظلم ہو رہے تھے, تو یہ تو صرف ایک چھوٹا سا میسج تھا کہ ہم ایک ہو چکے ہیں. اب اگر کوئی ایسا کوئی معاملات ہوں گے تو ہم ایک ہو کے انشاءاللہ تعالی ہماری بات بھی ہوئی آپس کے اندر, تو یہ یکجہتی کے ساتھ ہم اس کو فیس کریں گے. اچھی تقریب تھی, اور تقریباً کراچی کے تمام تاجر نمائندے یہاں شامل تھے, اور ایک جو رانا صاحب نے ایک بہت اچھی ایک طرح سے گلدستہ سجایا اچھے ماحول میں, اور 9 منتخب صدر کراچی چیمبر کے اور چیئرمین عباد الطاف ہمارے بھائی, ان سب کے اعزاز میں یہ دی گئی تھی. اور اس میں جو زیادہ تر بات ہوئی ہے کراچی کے حالات پہ اور آپس کے اتحاد و اتفاق کے اوپر, جس کی بہت سخت ضرورت ہے. کراچی کے اندر جو ہے اس وقت جو حالات خراب ہیں, سڑکوں کی پوزیشن ہے, لا اینڈ آرڈر کی پوزیشن ہے, آپ کی الیکٹرسٹی کا مسئلہ ہے, پانی کا مسئلہ ہے, اور بالکل ستیلے پن والا سلوک ہو رہا ہے. پاکستان کا جو بیڑا شہر ہے اور منی پاکستان اس کو کہا جاتا ہے, ریونیو کے حساب سے بھی اور ایکسپورٹ کے حساب سے بھی, انڈسٹری کے حساب سے بھی, امپلائمنٹ کے حساب سے, چیریٹی ہو کوئی چیز ہو اس میں سب سے آگے کراچی ہے. لیکن جب اس کو فنڈ دینے ہوں یا اس کے معاملے میں کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ ہو تو وہاں پہ کچھ بھی نہیں ملتا, بہت برے حالات ہیں. تو اس وقت ہم سب کو ضرورت ہے نہ صرف تاجر برادری کو بلکہ عوام کو کہ ایک آواز بنے اور کراچی کے لیے آواز اٹھائیں. ویسے تو پورے پاکستان کے لیے ہونا چاہیے لیکن کراچی کے لیے بہت ضروری ہے.
اور اگر ملک پاکستان چلانا ہے تو کراچی کے اوپر خصوصی توجہ دینی ہوگی. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अब्दुल जब्बार राठौड़ मेरा नाम, ड्रीम वर्ल्ड से मेरा ताल्लुक़ है, वहाँ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ. आज ये माशाल्लाह जो राना साहब ने जो मेला सजाया है, पूरी बिज़नेस कम्युनिटी को बुला लिया. स्पेशली ये आबाद चेयरमैन और चैम्बर के प्रेसिडेंट के लिए था, लेकिन इन्होंने जितनी पब्लिक आवाम जमा कर ली एक छत के नीचे, मैं समझता हूँ कि ये इनका बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ी चीज़ है. और मैं आपके इस चैनल के तवस्सुस से मैंने अल्ताफ़ ताई से भी बात की है, इदरीस मेमन से भी बात की है और मोतीवाला साहब से भी बात की है. इंशाल्लाह इसी तरह का इन प्रेसिडेंट्स के ऑनर में और इसी गैदरिंग में, बल्कि इससे ज़्यादा अल्लाह ने चाहा तो मैं भी ड्रीम वर्ल्ड में इस तरह इंशाल्लाह इनको. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. तकरीब के हवाले से मैसेज तो बहुत अच्छा था और बहुत स्ट्रॉन्ग था. मैं समझता हूँ कि बिज़नेस कम्युनिटी को अगर होश ना आए और अगर हम एक प्लेटफॉर्म वाली बात ना करें तो शायद हम मुश्किल है कि हम कभी एक हो सकें. इसलिए कि आज चैम्बर भी यहाँ मौजूद था, आबाद भी मौजूद था और फिर कराची की मुख्तलिफ बिज़नेस कम्युनिटी को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो तमाम लोग यहाँ मौजूद थे. और 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी का ये शहर है, जिसको गवर्नमेंट जो है इसको 1 करोड़ 60 लाख में जाके गिनती है. तो मैं कहता हूँ 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला शहर जो कि 70% रेवेन्यू वफाक को अदा करता है, 90 और 95% रेवेन्यू सिंध गवर्नमेंट को अदा करता है. बदकिस्मती से इसी को निशाना बनाया जाता है. इसके साथ जो मामलात होते हैं कि किसी किस्म के इसके ऊपर लगाने के लिए तैयार नहीं है. आप देखें कराची की पोजीशन आपके सामने मौजूद है. पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे किसी किस्म की नहीं है, नाम लेने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है. तो ये तमाम चीज़ें वो हैं कि जिसमें इंसान अपने आप को वो कहे. मैं ही समझता हूँ कि आज अगर इस प्लेटफॉर्म पे चैम्बर और आप दो बिज़नेस कम्युनिटी जो हमारे छोटे छोटे ताजिरान हैं और अगर हम सब एक प्लेटफॉर्म पे अगर खड़े होते हैं तो इंशाल्लाह हमारी आवाज़ मैसर बौसर होगी और पूरे पाकिस्तान. ये एक बड़ा खुशाइंद इक़दाम है. हमारे देरीना साथी अकरम राना साहब जो खान साहब रेस्टोरेंट के ऑनर भी हैं, राना आर्ट्स के भी ऑनर हैं, उनका बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का भी कारोबार है और मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के ताजरों को आज उन्होंने इकट्ठा किया है. ये एक गेट टुगेदर है, आपस में एक बाहमी मकसद था. अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं समझता हूँ कि पूरा हुआ है. जो मेरा एक सोच थी कि चैम्बर और आबाद एक ये ताजरों के एक बड़े प्लेटफॉर्म है जिससे छोटे ताजर जो है वो बेचारे पीछे रहते थे और बाज़ दफ़ा कोई चैम्बर में कोई भी प्रोग्राम होता था या आबाद में कोई प्रोग्राम होता था तो ये छोटे ताजरों को नहीं बुलाया जाता था. तो मैं तीनों तंजीमों के साथ हूँ. मैं छोटी अपनी एसोसिएशन का भी साथ हूँ, ताजर तंजीम के साथ मैं वाइस चेयरमैन हूँ कराची ताजरी इत्तेहाद का, और आबाद का भी मैं मेंबर हूँ, चैम्बर का भी मैं मेंबर हूँ. तो मैंने सोचा कि यार ये महरूमियाँ ख़त्म होनी चाहिए, दोस्तियाँ बढ़नी चाहिए और छोटा ताजर जो है वो बैकबोन है पूरे ताजर बरादरी की. अगर ये साथ नहीं होगा तो कभी भी खूबसूरती नहीं आएगी. आज की जो खूबसूरती है, जो हमारे बड़े बड़े जो ये यहाँ बिल्डर और चैम्बर के जो तमाम लोग बड़े आए थे, उस खूबसूरती को सजाने में सबसे ज़्यादा हाथ जो है मेरी उन ताजर तंजीमों का था. जो छोटी जिनको हम कहते हैं कि ये छोटी तंजीमें हैं, वो आज आई हैं. तो आज इस महफ़िल की खूबसूरती बढ़ी है और आज एक नया कदम हमने इस ताजर तंजीमों के लिए और चैम्बर और आबाद को एक नया मैसेज दिया है कि भाई इस तरह की तकरीब किया करें जिसके अंदर तमाम छोटे बड़े ताजरों को एक वैल्यू दो, इज़्ज़त दो और उनकी आवाज़ बनो और उनके मसाइल हल करो. तो आपको ये जो गुलदस्ता आपने सजाया है तो इस गुलदस्ते को इंशाअल्लाह ताला कायम दायम रखेंगे? जी बिल्कुल रखेंगे इंशाअल्लाह. आज कितने लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने इस चीज़ को देखकर ये महसूस किया है कि यार इस काम को आगे चलते रहना चाहिए. और मैं समझता हूँ कि अब इसको कई लोग, बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ को फॉलो करेंगे और ये सिलसिला इंशाअल्लाह जारी रहेगा. ये एक इज़्ज़त देने का मकाम है. जब तक हम किसी को इज़्ज़त देंगे नहीं तो हमें कौन को इज़्ज़त देगा. तो इस तरह आज सबको जैसे एक इज़्ज़त दी गई, वेलकम किया गया और जिस तरह तमाम ताजर तंजीमों ने, तमाम बड़ी एसोसिएशनों ने मेरा शुक्रिया भी अदा किया. और मैं समझता था कि शायद उनको अच्छा ना लगे कि वो अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, मगर आज उनको खुद ये एहसास हुआ कि नहीं ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है और इसको कंटिन्यू होना चाहिए.
जो रह गए हैं अभी जो हमारे जो हजरात है ताजिर बरादर हैं उनसे कोई मैसेज देना चाहते हैं कि वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है आपसे ज़रूर भरपूर ताउन करेंगे, आपसे शिरकत की। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं एक ऐसी जगह पे हूँ, मैं ताजरों के अंदर भी मैं छोटी तंजीम के साथ मैं ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद का वाइस चेयरमैन हूँ। मीर साहब मेरे चेयरमैन हैं। तो मेरा एक ही ख्वाहिश होती है कि हम किसी के साथ भी नाराज़ ना हों और किसी को नाराज़ ना करें। तो जो कोई नहीं आ सका उसकी कोई ज़ाती मसरूफियत थी, एक दो ने जो नहीं आई, जो तंजीमें नहीं आई, उन्होंने मुझे फ़ोन करके माजरत की है कि उनके कोई घरों में फंक्शन थे या किसी जगह पहले कमिटमेंट थी जिसकी बुनियाद पे नहीं आ सके। मगर तकरीबन लोग आए, 90% लोग जिनको हमने दावत दी थी आई, और जो अब रह भी गए तो आइंदा कोशिश करेंगे कि हम इंशाल्लाह उनको। कैमरामैन औरंगज़ेब के साथ अज़मत, वेब टीवी, कराची।